Yeah, go ahead. Yeah. So, hello everyone. Good evening. So today this is the fourth workshop of Decisim and Funket, and in this workshop we are going to study state table, state diagram, and other designing stuffs related to sequential circuit. So starting with state table. So it is basically the representation, tabular representation of different states like present state, next state, input and output of sequential circuit. What you have studied in combinational circuit like truth table, in the same manner, this is the state table for uh, sequential circuit. So this is in the first slide. There are description of all the columns that are present in the table. So in present state, you have the state of the flip flop that is in the present, and and there are in next step, in this second slide, you can see the representation of state table. First, present state or next state, these both defines the flip flop state, and input and output. This will just just like you can see in zeros and ones, what are all these? Either you can have a high input or low input depending upon that. So, in a similar fashion, you have a state diagram. State diagram is the same graphical representation. If you want to represent the information in graphical format, you can use a state diagram. If we say if we want to change the state table into state diagram format, so you can see here that in present state you have a and b. That means a is one flip flop and b is another flip flop. So if you want to represent this information in the form of diagram, state diagram, so you can just represent in this format. You have to just follow two or three points. Like first one is the state of flip flop is represented by a circle, and the transition between one state to another is represented by a line. So in this diagram you can see that this is the circle, and this 00 represents the state of the flip flop. You have used here two flip flops, so there is two state that is represented by 0 and another 0. And this is the line that represents that the present state is also 00 and the next state is also 00. So starting from 00 and ending at 00, you have input and output. This 0 slash 0, in this first one is input and the second one is output. In a similar manner, if you observe this present state is 10 and the next state is 00, and this is the transition line. So 0 is the input and 1 is the output. You can obviously see for other credentials, you can see that you can draw yourself if this is the given state table, you can draw the diagram, state diagram, and you will get that same output as the same in this one. So these are only the easiest thing in this. After that, there is a this is excitation table. Excitation table is like for any flip flop, you must have one state and another state. For present state, there's an next state, and depending upon that, you have J and K as the input. So if you if at present state, zero is your present state, and zero is your next state. If t is at t time, you have zero as the present state. Then at t plus one time, that is after one clock cycle, you have zero as the next state. Then the inputs should be like 0 and x. Here x represents the don't care condition, your k input can be 0, either 0 or 1. That doesn't depend, that don't matter. So in a similar manner, if you draw the what we call excitation table for D flip flop, you will get this in this format. So the one point you can check from here is that
for D flip flop, whatever is the D, the similar is the next state. Like if you have 0 as the next state, the D, the value of D will also be the same. That's it in the excitation table. After that, there are two types of two types of models of sequential circuits. In Mealy model, there are the output depends on present state as well as input. Whereas in the Moore model, that depends directly on the input present states only. That doesn't depend much on the input. Like in the final representation, if you see. And in Moore model, outputs of clocks are synchronized with the clock, whereas that's not always the case for Mealy model. Why this is happening is because in Mealy model, uh, your output is depending upon present state as well as input. So it may happen that your input is not in synchronized with the present state. So in that way, your output may not be in the sync with the clock. So this is the one thing you have to remember in this Mealy and Moore model. Uh, After that, there is state reduction and assignment. So in combination circuit, you must have studied about K-map method. K-map method is basically used for reduction in the number of gates that we use to deploy any circuit. So in a similar manner, we have state reduction method that is used for reduction in the number of flip-flops used in, because if any logic can be represented using less number of flip-flops, then why to use more number of flip-flops? So this is the one thing. So we can study state reduction method using one example. So let's say we have been given this state diagram. So you can see here that you have seven flip-flops. You have used seven flip-flops. Like all the circles represent one flip-flop. So you have to check whether you can make the same logic using less number of flip-flops. So for that, you have to first of all draw the uh, state table corresponding to the given diagram. So for that, what you have to do is that first of all, you write the present state. You have to check how many circles are there. That means how many states are there. So you will see that there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 states are there. So you write first of all you write all the present state, and after that for each state you check um, you check for the conditions when input is 0 and input is 1. So first of all, let's say we check for state A. So for state A, you have to see that when the present state is A and input is 0, you are going to get the same state A. So in the similar manner, you have to tabulate that in the format. So when present state is A and input is 0, you are getting the same next state. That means you have to write here A, and you have to check for output 0/0. That means input is 0 and output is also 0. So you have to write here 0. In the same manner, if you check when the input is 1 and the present state is A. So when present state is A and input is 1, this is the B is the next state. So you have to write that. Let's say here is A, and next state will be 1 when the input is 1, and when the input is 1, output will be 0. So in a similar manner, you have to write all the next state and output for all the 7 states, and after that you have to check what are all the conditions, what are all the times you are getting output and the next state same for two different present states. So on observation, what you will see that here for F and E, for F and E, you can observe that the next state is also AF, and for G also next state is A and F, and in the similar way output is 0 and 1, and for G also output is 0 and 1. So you see that means next state and output is same for both
both the states. So why to use two different states for the same purpose? So you can delete one state, or means you will not use two states for the same thing. So you can directly remove that from your table. So you can remove z, and wherever z is there, you can write e in that place. So here z is there, so you write e here. And after that, when G is removed, you see that for F and D, for F and D row, for D also your next state has E and F, and output is 0 and 1. And for F also, you have G and F, uh, yeah, E and F as the next state, and output is 0 and 1. So you can either remove F or remove D from this table. So we are removing F from here. So after that, wherever F is there, you write D in place of that. So that is the reduction part. After reduction, your state table will look something like this. And when your state table is reduced, you can directly make the state diagram out of that. Like how many present, you check for how many present states are there. So you will see that 5 states are there. So put 5 circles, and after that, uh, for every transition, you have to just write the inputs and outputs by this slash zero by means input state slash output state. Uh, and make the transition. That's it for. So from state table you can directly make the state diagram. So that's it. And for state diagram is just assigning some binary values to the different states in such a way that you have the combinational. You have to reduce the cost of combination circuit. Um, so after that, there comes the design processes for clock sequencer circuit. So this is the main part you have to focus on, because you have to make the circuits in the event. So you have to just follow these 8 or 9 steps that are given here, and you can make any for any given PS you can make the circuit. So first one is the word description of circuit behavior is stated. I mean, any question will be given, and you have to just observe what are all the inputs are given and what you have to do. The next step is obtain the state table using the above information. So we can understand this with an example. So let's say we have been given this state diagram. So you have to make the circuit for this given state diagram. So let's say, so for that, the second step is obtain the state table using the above information. So for this state diagram, you have to make the state table. So state table is basically following the same procedure what we have done earlier. So 0 0 is there. That means two binary inputs are there. That represents that you have two states. So let's say you have A as first state and B as the second state. So you have to write in this manner. So for present state, you write 0 0, and 0 0 0 1 means 4 states are there. You have to write this serially in any format what you want. And after that, you have to write next state, present input and output. So next state. So here you see that there is only input. You don't have any output. So in this case, you have to the next state will be your output. You need not worry about that. So here the next state is there, and mm, means from a state diagram you can make the state table for 0 0 case. Let's say you have when input is 0, you are going to the same present state. So when 0 0 is there and x is equals to 0 is the input, you are at the same state, that is 0 0. Then input is 1, you are at 0 0 state and input is 1. That means you are going to 0 1 position, 0 1 state. So you have to put the 0 1 below x is equals to 1
in a similar manner, if you are checking for like if you are at the state 10 and 1 is the input. So if you are at 10 state and 10 input, you are getting going to go to 1 state. So when you are at the 10 state and you have 1 as the input, you are at 1 state. So in this manner, you have to make the state table in the second state. So the third step is then the number of states can be reduced by state reduction method. So for on that, you have to check whether your next state and output are same for two different present states. So you can check clearly here that there is no any row where your next state are same for two different inputs. Everywhere it is different. So the third step can be skipped here, and fourth state is do state assignment if required. So state assignment is basically the assigning binary values to different states. So here on binary numbers are already assigned, so you can skip this state also. Then determine the number of flip-flops required and assign a letter symbol to each. So here four states are there. So for determining the number of flip-flops that will be used, you have to check how many states are there. So here four states are there. So for a given state, you have to find like 2 to the power n. For like if you have one flip-flop, you can use two states. You can use it for two representation of two states, because one state will be represented as 0 and second state will be represented as 1. So in a similar manner, if you have two flip-flops, you can represent it for up to four states. So here four states are required. So you will have to use two flip-flops for that. So in a similar manner, if you have seven states, like in this example, you have seven states. So you will require here three flip-flops, because uh, if you are using two flip-flop, only four states will be represented, 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. But if you are using three flip-flops, eight states can be implemented using that. So that is the one thing. After that, you have to choose the type of flip-flop that to be used. So you can use either JK flip-flop or D flip-flop or any other flip-flop. But generally, if you have many options, like you have all options like JK flip-flop, D flip-flop, and other D flip-flop, like, so you should go for D flip-flop, because that is easier to implement and all. So but here we are using, for this example, we are using JK flip-flop. So after that, the next step is derive the circuit excitation and output tables from the state table. So we have the state table here, and we have to make the excitation table. Excitation table is basically for the given present state and next state, what are all the inputs of flip flop, you have to tabulate that. So so for this state table, we have like present state, next state, and the input. So here the same thing we have written here in this table. So present state is 0, 0, next state is 0, 0. Means the same data over the state table is written in this column, and this is the flip flop inputs J and K and J and P. So for making excitation table, you have to remember two or three points that we have discussed in this. So for JK flip flop, we have when present state is 0 and next state is 0, your J input should be 0 and K can be anything, like don't care condition. Either you can have 0 or 1. That doesn't matter. So we are using here JK flip flop. So when
present input is 0 and present state is 0 and the next state is 0, you have to have j input as 0 and k can be anything. So in this example, for the first row, we have a present state as 0 0 and next state as 0 0. So for a flip flop, present state is 0 and next state is 0. So will be 0 and the ka can be anything. In the same manner, wherever 0 0 is there, means present state is 0 and next state is 0, we can indicate as x. uh, so here also 0 0 is there, so we can write 0 and x similarly. And the next case is when present state is 0 and next state is 1, we should have j as 0, sorry, j as 1 and k as x. X means don't care. That means for the third case, we have for a flip flop, present state is 0 and next state is 1. So we should have ja as 1 and ka can be anything. So means remembering that table, remembering the excitation table for jk flip flop, we can you can means for, you can make this excitation table for the given state table. And after that, here because output is not given, so the next state will be the output, means next state will be considered as the output of this given state table. So after that, you have to make k map for jk, sorry, and kb. uh, and after that you will reduce the means given combinational, means you will get the relation between all the components. And after that, you have to just make the circuit. You have to put the two flip flops and what are all the gates required for connecting between them. So the eighth state is obtain the expression for circuit output and flip flop input. So flip flop input is basically J and K, and output is not present here in this. Take an example. But if you have been given output also, you can make the K map for that very easily, like how you have made for flip flop input. And after that, implement the circuit. Implementation part is very easy after that. तो अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि आगे फिर सीक्वेंस डिटेक्टर है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा. कोई डाउट नहीं है किसी को? Okay, then moving on to sequence detector. Sequence detector is basically a sequential state machine to find a particular bit stream in a given string of bits given through a particular given through an input line. So if you have given a string of bits and you have to detect whether a particular sequence is present or not, like you have been given 10111 something, and you have to detect 101 is present in this string or not. So for that, sequence detector is used. So basically, the output will be high only when the sequence is found in the sequence detector, and for all other times the output will be low. And it is of two types. One is the overlapping one, and the another one is
non-overlapping sequence detector. So overlapping one is that the final bits of one sequence can be the start of another sequence, whereas there should not be any common bits in two different sequence in non-overlapping sequence detector. This you can understand in this case. So let's say, for example, you have the input in this format, like the one given for a non-overlapping case. So for this, and you have to detect 101 as the 101 sequence detector. That means you have to check whenever your output should contain 1 whenever 101 sequence is present, and for all other times your output will be 0. So here, starting from checking from the start, you will see that for the first bit 0 is there, so output will be 0. The next one is 1, so there also 0, output will be 0. But when 1 is there, you can see that the sequence is 101 and the first one is matching. So you have to check now where 01 is present after that. So after that, the third one is 1. So you are saying that 0 is not present. So this one is rolled out. So after that, you have to check here, starting from third one, you have to check whether 101 is present or not. So after that, after then fourth one is 0. So the output will be 0 because 101 is not found yet. And the fifth bit is 1. So fifth bit is 1, and start third, fourth, fifth is 101. So starting from third and up to fifth, you are saying that your sequence is found. The given one, 101 is given, and you are saying that 101 is found. So the output will be 1 at the fifth bit. And then at sixth, you are saying that your sequence will be 1010. So that is not equal to 101. So the output will be 0. And the seventh one, you are saying that 101 is present. 101 is present, but this is non-overlapping case. For non-overlapping case, there should not be bits overlapping from one sequence to another. So here, this one is already counted in this sequence. Like from third to fifth, the fifth bit is counted. And for fifth to seventh sequence, fifth bit should not again be counted in this second sequence. So the output is 0 here. But for the same, if and there have been means overlapping case, uh, the output will have been 1 here. And uh, in the similar way, you can write the output for that. For overlapping case, you can check here. Means in the same way, you can write the outputs in this way. So like starting from first one is 0. 0 is not matching with 1. So you can skip here. For first one, 1 is there. So 1 is there, but 101 is not present. So 0 output will be 0. For the third bit, you have 011. So 011 is not the sequence. So output is 0. Similar for the fourth case, but the fifth one, for fifth bit, you have 101 as the sequence. So the output will be 1. In the sixth case, uh, sixth is also 0. When there comes the seventh bit, you have fifth, sixth, and seventh as 101. And third, fourth, and fifth is also 1. So the fifth bit is already counted in this sequence, means first sequence. And for overlapping case, you can again consider this fifth bit for the fifth, sixth, and seventh bit. So here 1 is there. But if there has been non-overlapping case, this has been 0. So in this way, this is the difference between overlapping and non-overlapping case. So let's say you have to make a 101 sequence detector. So for that, first of all, you have to make the state diagram out of that. So, so for non-overlapping case, if you observe clearly,
then you can get like this. Like if you set means at the starting, let's say A is the state for reset. So when you are in state A, there is nothing. Means you have to check for 101 whole sequence. But when you are in B state, B state means B state is taken as when you have one and you are looking for 0 0 1. And C is the state when you have 1 0 with you and you are checking for another one. So in this way you can make your state diagram. Like three states are there. First one is the reset state, that's A, and here you have nothing, and you are looking for on the whole 1 0 1 sequence. And the second state is B. So when you are at state A and you have 1 as the input, so and when 1 is the input, your output will be 0. So check from here for non-overlapping case. When 1 is the input, your output is 0. So 1 is the input, output is 0. But you are going to next state because you have 1 with you and you are looking for only 0 1. In a similar way, when when you have 1 already, like in this position, when you have 1 already and your input is 0, then your output will be 0, but you are going to go to the next state, that is C. So when you are at B position, B state, and 0 is the input, your output will be 0, but you are going to go to the C state. C state where you have 1 0 with you and you are looking for another one. And this for C state, like this is the your C state. When your input is 1 and output, then output will be 1, and you will go to the reset state. Reset means you don't have anything and you are looking for the whole 1 0 1 sequence again. So you are at C position, C state, and your input is 1. Your input is 1, then your output will also be 1, and you are going to the reset state from where you are again looking for the next 1 0 1 sequence. So you have another one is there. So this is the sequence, and after that, whenever you have another input, like uh, being at B state and you have 1 as the input, your output will be 0, and you will remain at the same position, same state. So in this way, the whole diagram, state diagram will be made. And after that, you have to do the state assignment operation. That is, here you have 3 state, so you will require 2 flip flops. So you can make the state assignment as 0 0 1 0 0 1. And after that you have to look for whether you can make the state reduction or not. So here there is no chance of state reduction because there is no states, no two present states where the next state and output are same. So you can skip that step and then go to the next step for designing the sequence detector. So for that, so the next step is making the excitation table. So for making the excitation table here, in the last example, I have taken JK flip flop for explanation, but in this example, I'm taking D flip flop as the D flip. I'm using D flip flop for the designing purpose. So for D flip flop, you have to again check the basic excitation table. So in the for the D flip flop, the next state is always same for with the D input. So you can check again. Like say here, present state is 0 and the next state is 0. Your D input is 0. Uh, in a similar way, when present state is 0 and the next state is 1, your D input is 1. Or you can directly check from here when 0 is the input, 0 is the next state, D input is also 0.
when one is the next state, one is the D input. So you have to just remember that QT plus 1 is equals to D for D flip flop. So you can directly write here. Uh, so X and Y, let's take X and Y as the flip flops. So first one is X flip flop, and means X is the just a notation. We are taking D flip flop. So for the first one, you have to write zero or one, whichever steps is there, and you have to take only six. You require only three states in that one, 0 0 0 1 and 1 0. So you will have only six rows, and other two will be just don't care condition. So you have to put there x and 0, xx everywhere. So after that you have to make the excitation table. So for excitation table, uh, so I have skipped something. So here I have not drawn the state table. You have to make the state table out of it. So using the state table, you can make the excitation table. So accordingly, you can make the excitation table, and when the next state is zero, you have to just check that whenever the next state is zero, you have to accordingly make the D input. So let's say check for the X X flip flop. So for the X, zero is the next state. So your D input will also be zero. So this column will be the same as this column, and this column will be same as this column. And again, input for for output from here you can check output, like when when the when 10 is the present state, and your next state is also 10, your input is 1 and output is 0. So uh, so from here you can check when 10 is your present state, and 10 is your next state. 10 is your present state and 10 is your next state. The input will be 1 and output will be 0. So in this way you can make the table, and after that you have for every flip flop input and output you have to make the key map. uh, so so this is for dx, that means the x d flip flop, and this is for dy, and this is for z. Z is basically the output here. So for this column you have this k map, and for this column you have this k map, and for this column you have this k map. So just put all the input, means all the data from this table into this, and using the k map reduction method you can reduce this relation. And after that, after getting this relation, you can just connect all the flip flops and the gates accordingly, and you will get the circuit. So that's it for sequence detector. And I think so. If you mm, understand this very clearly, then you can make this circuit also. So uh, like you have been given that to design a sequencer circuit for detecting sequences having three or more consecutive zeros in a string of bits given through input line. So let's say you have been given this input. So first of all you have to understand the question what it is saying. So the question is, uh, if in if in a given string of bits, if you are getting three or more consecutive bits, you have to make your output high, or in all other cases your output must be zero. So that means if you are given this string, let's say, so your output, because here it is not given either, you have to take overlapping case or non-overlapping case. So you have to just um, you have to just write the output for both the cases. So let's say for overlapping case, so 0 will be there.
So you have to check first of all where means three or more consecutive zeros are there. So here consecutive zeros are there, three consecutive zeros are there, and here four consecutive zeros are there. That is greater than three. So at at all the places other than this, you have to simply write zero as the output. So here zero will be the output, and here zero will be the output. And after that, for all these cases, you have to check the last digit one. Like if for 000, the last corresponding to the last zero bit, you have one as the output, and at all other places, zero will be the output. And in the similar way, here for the second sequence, for this zero, there will be one as the output, and as it is overlapping case, you can consider this zero and this zero in this sequence also and in this sequence also. So the other one will be there. But if a non-overlapping case is there, then you cannot take either any of these bits into another sequence. So uh, if these three zeros are considered ones, then you have to just remove all these from the in means you cannot think of means using these bits again in any other sequence. So there will not means there won't be one as the output here. So this is just means explanation of overlapping and non-overlapping case again. So so after that, you have to means think of all the states that are possible for this question. So the three states that will be possible for this is means first one is reset. When there is nothing, you have to check for all means all three consecutive zeros, and if any more is there, then no problem. But means at least three zeros should be there. For the S1 position, S1 state, you have zero and you are waiting for another two consecutive zero. And for S2, you have two consecutive zeros and you are waiting for 1 0. In a similar way, you have to write all the possibilities that are possible for the given question. So after that, you are getting all the four states, and then you have to make the state diagram out of that. So so that is it. State diagram I have made for this question, and now all other things you have to do means you can practice that. So that's it from that's it, and Ravikant will take now. He will teach about register, counter, and other things. अभी तक किसी को कुछ डाउट आया हो तो पूछ सकते हो। एनी अभी भी है तो 2 सेकंड में बता देगा किसी को कुछ भी डाउट हो तो। हाँ, कुछ भी नहीं समझ आया हो लास्ट स्लाइड में तो बताओ। ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? मतलब किसी को कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? मेरी स्लाइड तो विजिबल है ना? अभी हाँ हाँ विजिबल है। किसी को कोई डाउट नहीं है?
ओके, तो अभी रजिस्टर्स एंड काउंटर शुरू करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो लाइक उसमें स्टेट डायग्राम और ये सब लाइक उसके स्टेट डायग्राम कैसे होंगे, वो स्टेट डायग्राम से तुम स्टेट डायग्राम से हम लोग कैसे उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं उसके एक्सटेंशन टेबल वगैरह की हेल्प से। तो एक सेकेंड, सॉरी, शायद मेरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। Your screen is visible. नहीं, लाइक फुल स्क्रीन में नहीं हो रही ना, मैं हाँ उसको वो कर ले। हाँ, एक सेकेंड। अब हो रही ना दिनेश फुल स्क्रीन में? यस यस। ओके, ठीक है। तो अभी आते हैं रजिस्टर्स एंड काउंटर्स पे। इसमें हम लोग टोटल 5 चीज़ें पढ़ेंगे। जितने भी पढ़ा ना, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उनमें स्टेट डायग्राम के हेल्प से हम लोग और फ्लिप फ्लॉप वगैरह की हेल्प से हम लोग पूरी सर्किट को बनाए थे, सीक्वेंशियल सर्किट को। अभी उन सीक्वेंशियल सर्किट की यूजेस देखेंगे, जैसे कि हमने पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा था। कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ने के बाद फिर हमने उसके हेल्प से कुछ रेडी टू यूज़ चीज़ें बनाई थी, जैसे कि मक्स बनाया था एंड वगैरह गेट की हेल्प से, मक्स बनाया था, डिकोडर, एडर वगैरह। तो वैसे ही हम लोग इसमें जो फ्लिप फ्लॉप होती है उनके हेल्प से कुछ रेडी टू यूज़ चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहला है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? ये एक मेमोरी टाइप का एलिमेंट होता है। इसमें ये ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है और इसमें एक रजिस्टर में 1 बिट इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरा काउंटर था। काउंटर क्या होता है कि एक ये लाइक काउंट करता है, नाम से भी पता है काउंट करता है। ये मतलब अगर हमने हमें कुछ ऑपरेशन कराना है तो वो उसमें टाइम का सीक्वेंस रखना पड़ेगा या फिर काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि काउंट कैसे, लाइक 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो जैसे कि इसमें तुमको दिख भी रहा होगा कि काउंटर में ये जो काउंट करने वाला सीक्वेंस है, इसमें तुम्हें प्रीवियस इनपुट भी चाहिए। तो अगर तुम इसको केवल कॉम्बिनेशनल सर्किट से बनाना चाहोगे तो बन नहीं पाएगा काउंटर, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा प्रीवियस स्टेट क्या था 1 2 3 4 में। 5 अगर प्रीवियस था तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट 6 है। ऐसे ही तो लाइक इसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप वगैरह यूज़ करके काउंटर को बनाते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर। तो 4 बिट रजिस्टर की, ये देखो 4 बिट रजिस्टर है। रजिस्टर में अभी बताए थे कि ये एक मेमोरी एलिमेंट टाइप का होता है। मेमोरी एलिमेंट तो ये फ्लिप फ्लॉप भी था, पर इसमें हम लोग लाइक एंड में अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले शिफ्ट रजिस्टर तक आते आते ये कुछ काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा केवल रजिस्टर में ही। तो जैसे कि ये 4 बिट रजिस्टर है, ये पैरेलल लोड वाला रजिस्टर है। इसमें क्या हो रहा है कि सारी वैल्यूज़ हमारी पैरेलल लोड हो रही हैं एक डी फ्लिप फ्लॉप में, और आउटपुट हमें मिल रहा है। तो लाइक अगर टी इज इक्वल टू 0 पे हमने 0 0 1 0 दिया है, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर क्लॉक की फ्रिक्वेंसी 1 सेकेंड है तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे 0 0 1 0 ये आउटपुट आ जाएगा। ये एक इसमें रीसेट बटन का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि रीसेट हमें हमेशा 0 पे सेट करने में हेल्प करता है। रीसेट की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सारे के सारे हमें वापस से एक साथ में 0 पे जा सकते हैं। फिर रजिस्टर विद पैरेलल लोड। अभी जैसे कि ये वाला देखा था, ये पैरेलल लोडिंग का केस है, सारी के सारी एलिमेंट्स एक साथ लोड हो रही। दूसरा टाइप का जो रजिस्टर होता है उसमें सीरियल लोड करते हैं। लाइक जैसे कि हमारी सीक्वेंस अगर 0 0 1 0 है, तो पहले इसमें 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा, ऐसा होता है सीरियल इनपुट। लेकिन इसमें पैरेलल वाले में सारे के सारे साथ में जाते हैं। लोडिंग का मतलब वही कि तुम्हारा इसमें जितने भी डेटा हैं वो एक साथ एक साथ लोड हो जाते हैं इस पे।
इसमें तुम क्या क्या कर सकते हैं, तो करने के लिए इसमें सबसे पहले तो क्लॉक सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर डी के इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको देखते हैं इनके हेल्प से कैसे आगे की सर्किट बनती है। जैसे कि देखो इसमें ये वाली सर्किट है, लाइक जैसे कि अगर हमें सर्किट में लेट्स से कि हमें इनपुट मिला है तो इनपुट को कभी कभी होल्ड भी करना होता है। लाइक अगर लेट्स से कि हमें 10 सेकंड के लिए हमें इनपुट मिला 0010, 10 सेकंड के लिए हमें 0010 को यहाँ पे होल्ड करा, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड और हमें 10 सेकंड के लिए ये वाली यहाँ पे होल्ड करानी है। तो ये होल्ड कैसे करेंगे? ये होल्ड करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक लोड वाली बटन ले लेते हैं। लोड, अगर हमारी लोड की वैल्यू 1 है तो इसमें डेटा लोड होएगी, नहीं तो फिर अगर लोड की वैल्यू 0 है तो फिर ये जो डी वाली इनपुट है वो इसी में वापस से दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, कोई माइक ऑन करके बताना कि इस वाले एंड गेट का आउटपुट क्या होगा। हेलो, कोकॉर्डिस में भी कोई बोल दो जल्दी से। भैया लोड की वैल्यू 1 रहेगी या 0 उस टाइम? लोड की वैल्यू 1 है, लाइक लोड के टर्म्स में बोलते हैं ना, लोड एल इंटू कुछ प्रोडक्ट आएगा ना, एल इंटू। अगर लोड 0 रहेगी तब ये अलाउ करेगा और 1 रहेगी तो अलाउ नहीं करेगा, तो एल कॉम्प्लीमेंट ही हो जाएगा। हाँ, एल इसकी आउटपुट है एल कॉम्प्लीमेंट ए जीरो, और इसकी वाले की है एल इंटू आई नॉट हो जाएगा। हाँ, एल इंटू आई नॉट। हाँ ठीक है। तो लाइक ये देखो कि अगर तुम्हारी लोड की वैल्यू 0 है तो ये ए ज़ीरो इसमें पास होएगी, यानी कि ये तुम्हारी प्रीवियस वैल्यू को ही रिटेन करेगा। और अगर लोड की वैल्यू 1 है तो ये तुम्हारी इनपुट को यहाँ पे भेज देगा, यानी कि जब तुम लोड 1 दोगे तो डेटा ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज तुम्हारा डेटा पुरानी वाली वैल्यूज ही चलेगी। कुछ नहीं है, सिंपल ही है बस इसमें लाइक बस कि हमें फ्लिप फ्लॉप से ज़्यादा ऑपरेशन कराने होते हैं एक ही, मतलब हर बार अगर हमें 5 बिट का स्टोर कराना है डेटा, 4 बिट का स्टोर कराना है डेटा, तो इतने सारे सर्किट बनाओ और इतना इतना बहुत ये लंबा बनाओ। उससे अच्छा है कि हमें रेडी टू यूज़ सर्किट मिल जाता है। जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में होता था हमें रेडी टू यूज़ मक्स मिलता था, रेडी टू यूज़ डिकोडर मिलता था, वैसे यहाँ पे भी ये बस रेडी टू यूज़ मिल जाएगा। लाइक इस पूरे को एक डब्बे में बंद कर दो, 1 आगे से डालो तो तुम्हारा लोड होगा, नहीं तो फिर वही पुराना डेटा रिटर्न करेगा। ये इसका यूज़ है। जो डी फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट है, बस ये आ रहा है। तो फिर ये दूसरा शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है कि हमारी इनपुट को ये शिफ्ट कराता है। तो शिफ्ट कराता है कैसे? देखो जैसे लेट्स से कि हमारी इनपुट 1011 है, 11 है, तो अगर इस पे हमें शिफ्ट कराना है, लेट्स से कि इसको शिफ्ट कराए, तो अगली इनपुट हमारी हो जाएगी 1011। अगर हमने इसको उल्टा शिफ्ट कराया तो 011। ये मतलब लेफ्ट शिफ्ट करा रहा है या राइट शिफ्ट करा रहा है उस पर जा रहा है। तो ये शिफ्ट रजिस्टर का काम होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी इनपुट सीरियल होती है, लाइक एक एक करके इनपुट होती है, और आउटपुट भी सीरियल मिलती है। लाइक आउटपुट को तुम पैरेलल भी ले सकते हो, सीरियल आउटपुट भी मिलती है, कोई ऐसा लोड नहीं है। जनरली रजिस्टर्स 4 टाइप के होते हैं। एक सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, और पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट। तो ये चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। होता कुछ खास नहीं है, बस इसमें सब में डी फ्लिप फ्लॉप या फिर तुम्हें जोन से भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है वो यूज़ कर लो, और इसके साथ में तुम छोटा मोटा जो कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हो वो बना लो। तो अच्छा, शिफ्ट रजिस्टर में एक तुम्हारा शिफ्ट कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल करता है कि तुम्हें शिफ्ट कराना है कि नहीं, लाइक तुम्हें शिफ्ट अभी कराना है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देख लो, ये शिफ्ट कंट्रोल दे रहे हैं। अगर शिफ्ट कंट्रोल की वैल्यू तुम्हारी 1 होगी तो ये शिफ्ट कराएगा, नहीं तो ये सिंपल लोड करेगा या वैसे करेगा। जैसे इसमें देखो ये इसका एक यूज़ है। अभी हमने पहले पढ़ा था एडर, मतलब जो पहले हमने एडर पढ़ा था उस पर ध्यान होगा कि तुम सिंपली एक फुल एडर यूज़ करते थे और तीनों के तीनों इनपुट इस पर डालते थे।
लाइक अगर हमें 4 बिट के नंबर को ऐड कराना है तो 4 फुल एडर होते थे ऐसे। याद है ना सर्किट, बाइनरी एडर कैसे बनता था? 4 फुल एडर होते थे और उनसे फिर तुम चारों पे लाइक पहला नंबर A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये डालते थे और सबके सब साथ में ऐड होकर के बाहर आते थे। ये वाला जो सर्किट है ये सीरियल एडिशन में करते हैं। लाइक हमारी इनपुट, जैसे पहली इनपुट लेट्स से 1011 है, दूसरी इनपुट हमारी 10001 है। तो अगर इसको सीरियल इनपुट में भेजेंगे तो पहले तुम्हारी शिफ्ट रजिस्टर ए में, लाइक शिफ्ट रजिस्टर ए में लेट्स से ये वाली स्टोर है और बी में ये वाली स्टोर है। तो सबसे पहले ये क्या होगा कि ये शिफ्ट रजिस्टर ए 1 और 1 को भेजेगा, ये 1 को भेजेगा, शिफ्ट रजिस्टर बी इस 1 को भेजेगा। ये 1 1 यहाँ पे आए, इनिशियली कैरी की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 0 है, तो उस उन 1 1 का सम 0 कैरी 1। अब ये कैरी लाइक हमें कैरी तुरंत नहीं चाहिए, हमें कैरी अगले क्लॉक सीक्वेंस में चाहिए जब तुम्हारा यहाँ पे ये क्लॉक जब मतलब नेक्स्ट क्लॉक पे जब ये तुम्हारा 1 1 आएगा उसमें ये कैरी ऐड होगा ना। लाइक यहाँ पे कैरी 1 है तो ये कैरी तो नेक्स्ट सीक्वेंस पे ऐड होगा। तो ये कैरी अगले क्लॉक पे, ये क्योंकि हमने सेम क्लॉक दिया है इसको, तो अगले क्लॉक पे ये कैरी यहाँ पे पहुँचेगा और उस टाइम पे 1 1 0 इसका ऐड होगा। फिर अगला यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 1 1 0 तो ये वापस से 0 और फिर हमारा 1 कैरी वापस से आएगा। फिर अगले क्लॉक पे 1 कैरी आके यहाँ पे फिर से डी में स्टोर हो गया। फिर अगले क्लॉक पे 0 0 और ये 1, तो फिर सम की वैल्यू 1 और कैरी की वैल्यू 0। अभी फिर उसके अगले क्लॉक पे ये 1 और ये फिर ये 0, लाइक ऐसे ये ऐड करते जाएगा। ये समझ आ रहा है ना? तो लाइक मैंने इसको डी फ्लिप फ्लॉप से बताया, कोई इसको जेके फ्लिप फ्लॉप से बना के बताओ। इसमें मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो क्या चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पे स्टोर करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए ना हम लोग, तो इसको अगर इसके जगह पे जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते तो क्या चेंज आता? कोई थोड़ा सा बताना, कोई भी बोल लो माइक ऑन करके। नहीं बोल रहा कोई? फिर मैं नेम कॉल करूंगा अगर कोई नहीं बोल रहा तो। कोकोडीज तुम ही लोग बोला यार, तुम लोग से उम्मीद है बस थोड़ा। अच्छा, जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल क्या होती है? लाइक उसका वही बता दो बस। भैया उसमें तो क्यू नेक्स्ट मतलब जे क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू होता है, तो डीएम को और डी हाँ में लाइक क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डी चाहिए रहता है तो लाइक जेके फ्लिप फ्लॉप का अगर तुम वो देखोगे ना, तो अगर जेके की वैल्यू 0 भैया 0 है। एक में डी और एक में डी कॉम्प्लीमेंट देंगे। हाँ जे के की सॉरी, जे एक में मतलब हाँ एक इनपुट इसकी डी होगा और एक में डी मतलब कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली जेके को डी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कर दूंगा। हाँ ठीक है, मतलब सही है। जैसे अभी इसको पूरा ही देख लेते हैं। तो लाइक हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या हमें पहले सबसे पहले तो बस कैरी को करना है चेंज, कैरी वाले पे चेंज करना। इसमें लाइक इसने सम पे भी जोर गेट लगा दिया है, कोई बात नहीं उस सम के लिए, और ये एंड होता है उसके लिए, इस पे इसको देख के घबराना नहीं। हमें बस सी को करना है चेंज। तो सी को प्रेजेंट स्टेट ले ले क्यू, और इनपुट हमारी एक्स वाई है, और नेक्स्ट स्टेट उसके अकॉर्डिंग क्यू और आउटपुट। और फिर अभी जेके में कन्वर्ट करना है, तो लाइक हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। तो 0 0 के लिए अगर तुम जेके को देखोगे तो जेके में 2 पॉसिबिलिटी होती है। अगर तुम्हारी जेके का अगर ट्रुथ टेबल किसी को याद हो तो जेके का क्या होता था, अगर तुम्हारी 0 0 है तो जेके में वो क्यू ऑफ टी को पास करता था। अगर तुम्हारी 0 और 1 है तो ये 0 को पास करता था,
और 1 0 है तो 1 को पास करता था, और 1 1 हो तो अगर ये दोनों को पास मतलब क्यू टी बार को पास करता था, क्यू ऑफ टी बार को। तो अभी हमारी प्रेजेंट स्टेट, अगर हमारी प्रेजेंट कैरी की वैल्यू 0 है और इनपुट हमारी x और y यहाँ से आ रही है, और तो इनपुट अगर 0 0 है तो हमारी नेक्स्ट कैरी की वैल्यू क्या होगी? 0 ही रहेगी। अगर 0 0 1 है तो कैरी 0 होगा इस केस में भी, मतलब कैरी केवल उसी केस में 1 होगा ना जहाँ पे 2 को 1 दिख रहा हो, तो 2 1 यहाँ पे दिख रहा तो कैरी 1 हो गया। यहाँ पे 2 1 दिख रहा तो यहाँ पे भी कैरी 1, यहाँ पे भी 2 1, यहाँ पे 3 तो भी कैरी 1। तो इतने सारे केसेस में हमारी कैरी की वैल्यू 1 हो गई। फिर ये जेके फ्लिप फ्लॉप अभी देखो प्रेजेंट स्टेट ये है, नेक्स्ट स्टेट हमारा 0 है। तो देखो जेके फ्लिप फ्लॉप में लाइक अगर हमें यहाँ से जेके फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करना है तो सोचना पड़ेगा कि जेके की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये 0 0, तो दो केस पॉसिबल हो सकता है कि या तो ये रिटेन कर ले, लाइक ये वाली केस हो, 0 से 0 है तो लाइक ये वाली केस हो, या फिर ये वाली मतलब कि ये j की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, या फिर j की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1। इन दोनों केसेस में अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर ऐसे ही अगर ये 0 तो हमारी jk की वैल्यू फिर से 0, और ये लाइक ये इस केस को ये वाली जो टेबल है ना इसको याद ही कर लेना तो ये बहुत सही होगा कि लाइक अभी हमारी प्रेजेंट स्टेट q है, नेक्स्ट स्टेट qt+1 है। तो उस केस में जेके की पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो 0 और x होता है, लाइक ये या तो ये वाला केस हो जाए पहला वाला, या तो दूसरा वाला केस हो जाए कि प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट ये, तो लाइक ऐसा करके होता है। तो फिर इससे ये j और k की वैल्यू है, j और k की, तो फिर इसके अकॉर्डिंग अगर तुम ट्रुथ टेबल बनाओगे तो ये सिंपली आ जाएगा, लाइक j की वैल्यू x इंटू वाई हो जाएगी, ये फिर ये k बार की वैल्यू k की वैल्यू ऐसी हो जाएगी। और दूसरा तरीका जो ये लोग कह रहे थे कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से मतलब ये है ना d में क्या होता है कि तुम्हारी सेम स्टेट रिटेन होती है, ये जो कैरी की वैल्यू है ये रिटेन करनी है ना, तो ये कौन से वाले केस पे रिटेन कर रहा है? तो ये केस 0 0 पे रिटेन कर रहा है, यानी j और k की वैल्यू तुम 0 0 मतलब j और k की वैल्यू तुम 0 सेट करनी है। तो फिर ये सिंपली वहाँ से भी कर सकते हैं, लाइक ये पूरा स्टेट टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि j के फ्लिप फ्लॉप को सिंपली d फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा वाला डाल दे, तो ऐसा। तो ये तुम दोनों कर सकते हो, दोनों, या तो पूरा स्टेट टेबल बना करके ट्रुथ टेबल बना करके ये कर सकते हो, नहीं तो फिर उधर से भी डायरेक्ट हो जाएगा, कोई लोड नहीं उसमें। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है, जैसे हमने अभी तक 3 ऑपरेशन पढ़े इसके। शिफ्ट एक तो तुम्हारा की लोड कर रहा है, दूसरा ये तुम्हारा इनपुट सीरियल है, और ये शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है कि ये सारे जितने भी हमने अभी तक रजिस्टर के ऑपरेशन पढ़े ये सबको एक साथ कर लेगा। या तो ये क्लियर इसमें यहीं पे देख लो, अगर तुम्हारी सबसे पहले ये सर्किट थोड़ा समझ लो। हमने 4 मक्स लगाया है और उसके करस्पॉन्डिंग 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगाए। अभी 4 डी फ्लिप फ्लॉप और 4 मक्स हैं। अभी मक्स जो है ना ये कंट्रोल करेगा कि डी पे क्या इनपुट जाना है। अगर तुमने मक्स के सेलेक्ट लाइन पे 0 0 डाली है तो ये तुम्हारी लोड कराएगा, ये तुम्हारी सॉरी जो ये लोड नहीं करती, ये मतलब ये प्रीवियस स्टेट को रिटेन करेगा जो तुम्हारी पहले की स्टेट है। अगर तुमने 0 1 डाला है तो ये लेफ्ट राइट शिफ्ट कराएगा, 1 0 डाला है लेफ्ट शिफ्ट कराएगा, 1 1 डाला है लोड कराएगा। तो लाइक मतलब सबसे पहले ये देखे कि ये कर क्या रहा है। तो अगर तुमने 0 0 डाला है तो इस 0 वाली लाइन पे क्या इनपुट जाएगा? ये A3 यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये यहाँ तक, तो ये S3 पे सॉरी ये इस मक्स पे A3 जा रहा है, यानी जो पहले इसकी स्टेट थी ये वही जा रहा है डीप की इनपुट। यहाँ पे अगर देखो तो A2 है ये 0 पे, ये A2 ही इसकी इनपुट जा रहा है।
A1 ही इसकी 0 पे जा रहा है, तो तुमने 0 0 डाला है तो तुम्हारी प्रीवियस स्टेट रिटेन हो गई। अगर तुमने 0 1 डाला है तो ये राइट शिफ्ट करेगा। अच्छा, अगर तुमने 0 1 डाला है तो ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी। हाँ, तुमने अगर 0 1 डाला है तो तुम्हारी राइट शिफ्ट कराएगी। तो 0 1 डाला तो ये 1 वाली लाइन सेलेक्ट होनी चाहिए। 1 पे देखो इनपुट क्या आ रही है। 1 पे इसके अच्छा ये तो राइट मोस्ट बिट है, तो इसको छोड़ दो। उसके उसके बाद फिर इस वाले पे देखो, इस वाले पे देखो। इस वाले पे क्या हो रहा है कि ये A3 यहाँ से ये 3 यहाँ से आ रही और ये इनपुट जा रही 1 पे। तो ये लाइक इस वाले मक्स की आउटपुट हो जाएगी तुम्हारी A3। सिमिलरली इस वाले मक्स की आउटपुट हो जाएगी A2, इस वाले की A1। तो ये दिखा कि लाइक A0 पहले A3 A2 A1 था, अब ये एक शिफ्ट कर गया तो A3 A2 A1 हो गया ये। तो ऐसे ही फिर तुमने अगर लेफ्ट शिफ्ट डाला है तो तुमने लेफ्ट शिफ्ट डाला है तो तुम्हारी 2 वाली इनपुट जानी चाहिए। इसमें देखो इस वाले 2 पे क्या इनपुट डाल रहा है, इस वाले 2 पे इनपुट डाल रहे हैं हम लोग A2, यहाँ से आ रहा है तो इसकी आउटपुट हो गई A2। सिमिलरली इसकी आउटपुट हो जाएगी A1, इसकी आउटपुट A0, तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर तुमने 1 1 डाला है यानी पैरेलल लोड 1 1 डाला है तो ये वाली थर्ड वाली लाइन सेलेक्ट होगी। थर्ड वाली I3 I2 I1 I0 ये चला गया, तो तुम्हारी इसमें नई वैल्यू आ गई। नई वैल्यू तुम्हारी इसमें लोड हो गई। ये अभी हम जब सर्किट बनाएंगे तो उसमें यही वाली रजिस्टर यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। उसमें तुम्हारी एक इनपुट S1 S0 होगा, 4 इनपुट तुम्हारी ये होंगी, 2 इनपुट और होंगी एक शिफ्ट लेफ्ट की। लाइक अगर तुमने राइट शिफ्ट करा है तो उस केस में तुम्हारी ये वाली वैल्यू क्या होगी, मतलब ये तुम्हें बतानी पड़ेगी ना कि लाइक जैसे इस वाले केस में A3 A2 A1 हो रहा था, ये वाली लास्ट वाली ब्लैंक रह रही थी, तो ये तुम्हें बताना पड़ता है कि ये राइट मोस्ट वैल्यू क्या क्या थी। और सिमिलरली अगर तुमने लेफ्ट शिफ्ट करी है तो तुम्हें बतानी पड़ेगी इस साइड वाली वैल्यू क्या थी जो तुम्हें डालनी है। लाइक A2 A1 A0 हो गया तो यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू होनी चाहिए थी। तो इस पैरेलल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो, क्योंकि हम लोग जब बनाएंगे तो इसी को यूज़ करेंगे, ये यूज़ नहीं कर पा रहे तो नहीं बन पाएगा। बस 4 ऑपरेशन करने हैं तो मैं इसकी सब सारे के सारे साथ में ये करा देगा, बस इतना ही है इसमें। एनी डाउट? आई गेस नो डाउट। फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, काउंटर। काउंटर नाम से ही पता चल रहा है ये काउंट करेगा। अगर तुमने काउंटर में n डाले, n फ्लिप फ्लॉप डाला, तो ये 0 से 2 का पावर n-1 तक काउंट कर सकता है। तुम बीच में कहीं रोक सकते हो तुम्हारी मर्जी, पर मैक्सिमम ये 0 से 2 टू द पावर n-1 काउंट कर सकता है। सबसे जनरल यूज तो वही तुम्हारी 1 2 3 4 काउंट करने में आएगा कि 1 2 3 4 काउंट कर लिया। तुम चाहो तो लाइक किसी भी काउंटर को अगर लेट से एन काउंटर को यूज करके तुम केवल 0 से 1 भी काउंट कर सकते हो, 0 से 2 भी, लाइक तुम्हारी मर्जी, तुम उसको कहाँ पे उस काउंटिंग को रोकना चाहो। मैक्सिमम रेंज बस फिक्स होती है, मिनिमम फिक्स नहीं होती। तुमने अगर एन फ्लिप फ्लॉप यूज करा है तो दो टाइप के काउंटर होते हैं, एक रिपल काउंटर और एक सिंक्रोनस काउंटर। रिपल काउंटर में क्या होता है ना कि लाइक इसमें जैसे कि तुम्हारी जो ये आउटपुट है ना, ये एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दूसरे की क्लॉक बनती है। अभी जैसे ये देख लो, इसमें हमने पहला वाले में हमने टी फ्लिप फ्लॉप यूज करा है, तो इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर लाइक ये A0 है तो इसको हमने अगली बार क्लॉक में भेजा है। और तुम्हारी जो सिंक्रोनस काउंटर होती है ना, उसमें सारी की सारी कॉमन क्लॉक मिलती है सबको। तो जैसे कि ये जैसे लेट से हमने हमारी बेसिक क्लॉक जो है, हमारी बेसिक क्लॉक लेट से कि कुछ ऐसी है।
ये हमारी ये वाली क्लॉक है जो इसको मिल रही है। ओके, अभी उसके बाद A0 का आउटपुट कोई बता सकता है कैसा होगा? हमने इनिशियली सारे को A0, A1, A2, A3 सबको 0 पे सेट किया, तो A0 का आउटपुट कोई बताना कैसा होगा? भैया टाइम पीरियड उसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, I guess। हाँ, टाइम पीरियड 2 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सही बात है, जी। फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा। हाँ, तो कौन, ये किसने आंसर करा? ये आकृति। अरे बढ़िया, हाँ ठीक है। तो ये देखो क्या हो रहा है, जब इसकी आउटपुट आएगी तो हमने जैसे ये क्लॉक ऐसी है, तो 0, तो इनिशियली ये क्या होगा कि यहाँ तक फ्लैट चलेगा, हमारी A0 की वैल्यू 0 है। टी फ्लिप फ्लॉप अगर याद हो कि क्या होता था, तो टी फ्लिप फ्लॉप में अगर तुमने 0 इनपुट दिया है तो वो पुरानी स्टेट को रिटेन करेगा, और तुमने अगर 1 दिया इनपुट पे उसकी वैल्यू, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारी A0 तुम्हारी इनिशियल वैल्यू A0 की, ये तुम्हारी क्लॉक है, ये तुम्हारी A0 है। A0, तो इनिशियली तुम्हारी A0 0 है। टी की वैल्यू हमने इसको लॉजिक 1 पे सेट कर दी है कि हर इंटरवल के बाद तुम इसको रिवर्स करोगे। तो लाइक जब जैसे ही तुम्हारी पहली क्लॉक आएगी, पहली ये डाउन, ये अगर ये क्लॉक, ये टी फ्लिप फ्लॉप, ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड का साइन है। तो जैसे ही तुम्हारी पहली निगेटिव एज ट्रिगर आएगी, वहाँ पे A0 की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाएगी। अभी ये कांस्टेंट रहेगी। जैसे ही फिर अगली वाली तुम्हारी निगेटिव एज ट्रिगर आएगी, ये इसकी वैल्यू घट के 0 हो जाएगी, फिर अगली पे 1, फिर अगली पे 0, ऐसा ये टॉगल करते रहेगा। इस टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग इसलिए टॉगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा रिवर्स कर देता है हर क्लॉक के बाद अपनी इनपुट को। तो लाइक अगर तुम्हारी क्लॉक ऐसी थी, तो A0 का तुम्हारा कुछ ऐसा सर्कल बना, ये देखो, ये हाफ हो गया, ये ऐसा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो A0 का कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा। हाँ, कोई तो इसमें देखो टाइम पीरियड तुम्हारा 2 हो गया, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी हाफ हो गई। लाइक अगर तुम्हारी पहले फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड थी, अब फ्रीक्वेंसी 2 सेकेंड हो गई। ये एक को काउंट कर, सॉरी, पहली फ्रीक्वेंसी लाइक लेट्स से कि 1 सेकेंड में 1 थी, तो अभी एक सेकेंड में हाफ क्लॉक ही चला, 2 सेकेंड में पूरा टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड 2 हो गया, फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया। तो ये वाली देखिए, अभी अब A0 A1 की भी इनिशियल वैल्यू 1 थी, तो इनिशियली लाइक इसमें इसको क्लॉक मिल रहा है A0 पे। तो क्या होगा कि जब तक तुम्हारी ये निगेटिव एज ट्रिगर नहीं आएगी A0 में, तब तक A1 तो अपनी सेम वैल्यू चलेगा जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी, तो ये ऐसा चलेगा। फिर जैसे ही इसको ये निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक मिलेगा, वैसे ही अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, फिर अगले निगेटिव ट्रिगर पे वापस से चेंज करेगा, फिर वापस से ऐसा, फिर वापस से ऐसा। तो ये तुम्हारा A1 हो जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हारा सबका सब चलते रहेगा। A2 फिर इसका हाफ हो जाएगा, A3 इसका हाफ हो जाएगा। अभी इसको सिमिलरली A2 का भी ये ऐसा है, तो ये ऐसे, अगले इस पे ऐसा, और सिमिलरली A3 ऐसा होगा। यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इसको ये लाइक लास्ट ईयर काफ़ी लोगों से एनवीडिया में या शायद टीआई में, मुझे ठीक से याद नहीं, किसी एक इंटरव्यू में सारे लोगों से ये कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसकी क्लॉक को हाफ कैसे करेंगे, ऐसा करके। हाफ कैसे करेंगे, 1/4 कैसे करेंगे, 1/4 करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगाओगे, काफ़ी लोगों से पूछा था ये लास्ट ईयर के इंटरव्यू में। तो बस NVIDIA यही इसमें, हाँ हाँ NVIDIA में था, एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है और फ्लिप फ्लॉप यूज करके उसकी चेंज करनी थी फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो टीआई में भी था आई गेस की, क्योंकि टीआई वाले भी यही पढ़ते थे। 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी और 20 करना था, ऐसा कुछ था।
मैं तो बैठा नहीं था तो हाँ, तो ये ऐसा होता है तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी ऐसे हाफ हो रही है सब में। अभी अगर तुम इससे अब इसको काउंटर में कैसे कन्वर्ट करें, लाइक ये काउंटर है पर ये काउंट पता कैसे चले कि ये काउंट कैसे कर रहे हैं। तो तुम देखो तुम्हारी पहली क्लॉक ये थी, ठीक है। इस वाले में A0 A1 A2 A3 सबके सब जीरो हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबके सब जीरो हैं। अगले क्लॉक में क्या हुआ, जो तुम्हारा अगला लेट से कि हमारी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में ये सब जीरो जीरो थे। सेकेंड में सब उनमें से एक 1 हो गया, बाकी सबके सब ये डायग्राम थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, आदत नहीं है ना माउस से ड्रॉ करने की। तो नेक्स्ट सेकेंड में ये 3 जीरो है और A0 की वैल्यू 1 हो रही है, तो ये 1 हुआ। ऐसे ही तुम्हारी ये सबको काउंट करते चलेगा, 0 से लेकर के ये तुम जितने तक काउंट रखो। ये उसके अगले पे ये वाली ये देखो, ये A0 1 हो गई है, और इस अगले वाले पे A0 0 हो गई है, A1 1 हो गई है, A0 0 A1 1। तो ऐसे करके ये मतलब तुम इसके बाद एक एडर कुछ भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट लगा कुछ भी क्या, ये तो काउंट हो गया ना, ये 0 है या 1 है, लाइक ये तुम इससे बस एक वो निकाल दो, BCD एडर ऐड सॉरी BCD डिस्प्ले लगा दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेकंड चल रहा है, ठीक है। अभी अब ये हमने T से बनाया था, अगर हमें D से बनाना हो सेम चीज़ तो क्या करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इसमें कि हर क्लॉक सीक्वेंस के बाद तुम्हारी आउटपुट का नेगेटिव जा रहा था इसका इनपुट, लाइक अगले पे ये यहाँ पे A0 का क्लॉक इस पे जा रहा था, और ये हर पे नेगेटिव हो रहा था, लाइक ये हर जो तुम्हारी A0 है या फिर ये A1 है, ये हर के बाद नेगेटिव होना है। तो इसके लिए डी फ्लिप फ्लॉप में क्या करेंगे, ये नेगेटिव वाली तो डायरेक्ट आती नहीं है, तो क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट इनपुट है ये डी बार से, क्योंकि ये क्यू है, ये क्यू बार होता है डी में, ये तो पता ही होगा क्यू बार होता है ये। तो क्यू बार को डी से कनेक्ट कर देते हैं कि ये वाली क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि इसका नेगेटिव वाला ही जा रहा था ना हमेशा, तो बस नेगेटिव वाला भेजने के लिए ये करेंगे। ये वैसे ही सिमिलरली इसमें भी ये डी को टी में कन्वर्ट कर दिया इससे हम कि यहाँ पे टी की वैल्यू हमेशा 1 थी, तो इस वजह से बार को कनेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका कोई एक डिसएडवांटेज बताओ कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। छोड़ो, लाइक इसमें क्या होता है ना कि हमारी क्लॉक इससे इसमें जा रही है तो सर्किट स्लो हो जाती है, कि इसमें टाइम डिले काफ़ी ज़्यादा आ जाता है क्लॉक में, क्योंकि ऐसे जा रही है ना एक से एक ऐसे, तो बहुत डिले टाइप का थोड़ा होता है ये सर्किट। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं रिपल काउंटर भी, पर जो क्लॉक वाली होती है ना, क्लॉक सीक्वेंस में थोड़ी तुम्हारी कॉम्बिनेशनल सर्किट ज़्यादा लगेगी, पर उनका ज़्यादा यूज़ होता है, उनमें जो जॉनसन काउंटर होता है या फिर रिंग काउंटर होता है, उनका काफ़ी एप्लीकेशन है। इनका भी एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है, पर उनका ज़्यादा एप्लीकेशन है, जिनमें कि कॉमन क्लॉक देते हैं सब में। इसमें क्लॉक हाफ हो रही है तो लाइक थोड़ा कम यूज़ करते हैं ऐसा। अगर तुम्हें इसको PCD बनाना, जैसे कि ये 4 था तो 4 है, तो ये 0 से 15 यानी 16 वैल्यूज काउंट करेगा 2 to the power 4, 4 फ्लिप फ्लॉप में। तो अगर तुम्हें इसको 0 से 9 ही काउंट करवाना है तो क्या करोगे। तो कुछ नहीं, बस जैसे कि लेट से कि हमें 0 से 9 काउंट करानी है, तो 9 कितने पे आएगी, 9 आएगी तुम्हारी 1 0 0 1, ऐसी रहेगी 9 पे। तो तुम क्या करो कि जैसे ही ये 9 है ना, वैसे ही तुम रीसेट को 1 कर दो, और रीसेट कर दो सारी सर्किट को। रीसेट हो गया यानी कि सारी की वैल्यू 0 0 0 हो गई। अब ये 0 से 9 गया, 9 के बाद इसको कुछ एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लगा करके, कॉम्बिनेशनल सर्किट लाइक जैसे ही इस रीसेट में ये क्या है, ये 1 ये 1 यानी कि A0 1 और A3 1, तो लाइक इसका एंड लेकर के रीसेट में भेज दो बस। तो इससे क्या होगा कि उतने के बाद तुम्हारी सर्किट वापस से 0 पे चली जाएगी और फिर वो वापस से काउंट करने लगेगी। अभी सिंक्रोनस काउंटर में आते हैं। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, पहले बताए थे कि इसमें हमें क्लॉक
कॉमन होती है। जैसे इसमें हमने क्लॉक सबको अलग अलग दिया था और इसकी आउटपुट ही क्लॉक जा रही थी। इसमें इसकी क्लॉक मिल रही थी A0 से, A1 मिल रही थी, इसको क्लॉक मिल रही थी A1 से, इसको क्लॉक मिल रही थी A2 से। यहाँ पे क्लॉक सबको कॉमन देते हैं हम लोग कि सब में कॉमन जा रहा। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो सिंक्रोनस काउंटर, अगर रिपल काउंटर बनाने के लिए तो सिंपल, उसमें कुछ करना नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपली उसको करना है। पर सिंक्रोनस बनाने के लिए हम लोग को वापस से जो अभी एनी पढ़ा रही थी कि स्टेट डायग्राम बना करके सब कुछ वापस से सारे ऑपरेशन वो JK फ्लिप फ्लॉप और कैसे करने वो देख लेते हैं। तो इसको चलो T से बनाते एक बार। तो ये देखो, जो फर्स्ट वाली बिट है ना, फर्स्ट वाली, ये देखो हर स्टेप के बाद ये उल्टा हो जा रहा है। देख, मतलब 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0, लाइक हर स्टेप पे तुम्हारी जो फर्स्ट वाली बिट है ना, वो उल्टी हो रही है, रिवर्स हो रही है, उसका बार हो रहा है। तो एक ये तो फर्स्ट वाले बिट के लिए सिंपली दिख रहा होगा कि तुम T पे 1 डाल दो तो तुम्हारा हर बार रिवर्स होते जाएगा। ठीक है, अभी अब बाकी बिट के लिए भी देखो तो क्या हो रहा है कि ये मतलब नेक्स्ट बिट 1 कब होता है? फर्स्ट वाली बिट अगर 0 है तो नेक्स्ट वाली बिट पे कुछ भी हो, नेक्स्ट वाली बिट, जैसे अगर फर्स्ट वाली बिट 0 है तो और नेक्स्ट वाली बिट कुछ भी हो तो उसके अगले में चेंज नहीं होता वो, समझ रहे हो? लाइक ये इस पे 1 ऐड करोगे तो 1 यहीं पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी प्रीवियस बिट जो है वो तुम्हारी 1 है, तब ये यहाँ पे चेंज होता है। तब इस पे अगर 1 जोड़ोगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। लाइक तो मतलब कि अगर तुम्हारी प्रीवियस बिट 1 है तो तुम इस बिट को, प्रीवियस बिट नहीं, प्रीवियस सारे बिट्स, जैसे 3 बिट्स की है ना, तो अगर ये 1 0 0 है तो इसकी नेक्स्ट बिट क्या होगी? यहाँ पे तो यहीं पे हमें 0 मिल गया तो इसको 1, इसी को 1 करेंगे। अभी अगर लेट से 1 1 1 होता तो ये थर्ड बिट के लिए बात करें कि थर्ड बिट कब रिवर्स होगा। तो थर्ड, अगर प्रीवियस सारी वैल्यूज 1 है तो ये वाली अब रिवर्स होगी, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 0। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, लाइक तुम चाहो तो इसके लिए पूरी स्टेट टेबल बना करके भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, यही आएगा। पर ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी मतलब बुक में दिया हुआ था तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये सिंपली ऐसा कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। तो अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0 1 है। अभी इसमें भी प्रीवियस सारी बिट, थर्ड बिट के लिए अगर देखेंगे तो प्रीवियस सारी बिट 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये थर्ड वाली सेम रहेगी। इसको देखोगे, अगर प्रीवियस बिट 1 है तो ये चेंज हो जाएगी 1 है, और ये तो फर्स्ट वाली तो हमेशा उल्टा हो ही रही है। तो वो लाइक ऐसे है। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है कि अगर तुम्हारी प्रीवियस सारी बिट 1 है, अगर तुम्हारी प्रीवियस बिट, इससे पहले की सारी वैल्यूज 1 है, तो तुम इसको चेंज करो, अदरवाइज तुम इसको चेंज सेम वैल्यू पे रिटर्न करो। तो यानी कि T फ्लिप फ्लॉप में 1 तुम्हें तब देना है जब इसके पहले की सारी वैल्यूज 1 हो। तो अगर इसके पहली वाली 1 है, A0 की वैल्यू 1 है तो T चेंज करेगा। अगर A0 की वैल्यू 1 नहीं है तो ये चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली अगर A2 पे आएंगे तो A2 कब चेंज करना है? जब इसके पहले की सारी वैल्यूज 1 हो, यानी कि तुम्हारी A1 भी 1 हो और A0 भी 1 हो। तो वही बस ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तुम इसको एक्साइटेशन टेबल बना करके भी बना सकते हो, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको समझने में दिक्कत हो। हालांकि इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। ये समझ आ गया ना सबको? कोई माइक ऑन करके बोलो। हाँ भैया। अभी अच्छा, इसमें बाइनरी काउंटर भी ना 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक काउंट करते हैं, दूसरा जो होता है वो 9 से लेकर मतलब रिवर्स काउंट करता है, बेसिकली 16 से लेकर के 0 या फिर ऐसा कुछ भी। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अगर तुमने एक बना लिया तो दूसरा भी अपने आप बन जाएगा। तो मैं बस एक अप वाला पढ़ा रहा हूँ, डाउन वाला खुद से देख लेना। तो
अभी 4 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर, तो बस वही इसमें भी वही कर रहे हैं। अगर तुमने जेके फ्लिप फ्लॉप लिया है और तुम्हें रिवर्स करना है, तो इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप में किस कंडीशन पर रिवर्स होती थी? अगर दोनों 1 हो तब, जे की भी वैल्यू 1 हो और के की वैल्यू भी 1 हो, तब तुम्हारी रिवर्स हो जाती थी। तो अभी तुमने क्लॉक दिया है सब में, ये सेम सर्किट है जो यहाँ पे करा ना, टी से किया, उसी को बस जेके से बना रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और ये लिख भी दिया है कि तुम्हें कब 1 करना है। तुम्हारी प्रीवियस इफ ऑल लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स आर इक्वल टू 1, तो तुम इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो बस वही, अभी तुम्हारी A0 की भी वैल्यू, A0 की वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 आएगी। काउंट इनेबल तो ये ऐसी फालतू के भी नहीं, मतलब काउंट करना शुरू करना है। तो ये 1, अगर ये 1 है तो इसको भी 1 दो, इसको भी 1 दो, ऐसा। अभी इसके यहाँ इस A2 के लिए A0 और A1 दोनों को 1 होना चाहिए। तो दोनों 1 होने के दोनों 1 होंगे तो यहाँ से बस एक एंड गेट निकाल दिए। ये एंड गेट की इनपुट ये यहाँ पे ये सिंपल, ये पुरानी टी से समझ आ गया। तो जेके में बस दोनों की वैल्यू 1 1 पे कर दे रहे हैं, दोनों में सेम इनपुट डाल रहे हैं 1 1 की, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। बीसीडी काउंटर तुम्हारी ये 0 से लेकर के 9 तक काउंट करती है, फिर वापस से वहीं तक आ जाएगी। तो इसमें भी तुम एक तो ये कर सकते हो कि वो जो हमने यहाँ पे इसमें किया था कि रिपल काउंटर में, कि जैसे ही तुम्हारी 1 ये वाले इनपुट आए तो तुम रीसेट को 1 कर दो। या फिर तुम दूसरा काम ये कर सकते हो कि पूरा का पूरा एक स्टेट टेबल वापस से बना लिया और फिर इसको स्टेट टेबल पे देख लिया। लाइक स्टेट टेबल में 9 के बाद तुम्हारी 0 आनी चाहिए, और ये आउटपुट तुम्हारी 1, ये 1 इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता चल जाए कि एक पूरा साइकिल हो गया, 0 से 9 तक काउंट कर चुके, अभी दूसरी बार 1 पे जा रहे, 0 पे जा रहे हैं। तो फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट ऐसे बना करके तुम इसकी जब टी के लिए तुम क्या बोल के मैप बनाओगे तो तुम्हारी ये सेम आ जाएंगी ऐसी, और तुम इसको से बना सकते हो। या फिर तुम वैसे कर सकते हो कि यहाँ पे तुम ये बना लिया ऐसे, ये तुम्हारी जैसे ही 9 वाली वैल्यू आई, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो तुम इसके रीसेट पिन जो होंगी उनको 1 कर दो। इसमें फ़ायदा ये है कि तुम्हारा थोड़ा मतलब तुम बेसिक से बढ़ रहे हो, तुम्हारी सर्किट थोड़ी ऑप्टिमाइज रहेगी, और क्या। तो अच्छा, ये टी में तो समझने दिक्कत नहीं ना कि ये टी कैसे हो गया। लाइक अगर तुम्हारी ये 0 है, ये 0 है, ये देख लेना तुम लोग। अगर इसमें डाउट है अभी भी किसी को तो पूछ लो। मैं तो पहली बार पढ़ा था तो मेरे को तो बहुत डाउट हुआ था कि ये टी को कैसे बना रहे हैं। तो जैसे प्रेजेंट स्टेट लिखा, नेक्स्ट स्टेट लिखा, अगर प्रेजेंट स्टेट में ये वाली सेम है तो टी की वैल्यू सेम रह गई। अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट ये दोनों मतलब Q8 और QT+1 लाइक ये नेक्स्ट स्टेट Q8 का प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट उल्टा है, तो टी की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर इन प्रेजेंट स्टेट और ये टी के लिए हम लोग एक प्रेजेंट, अच्छा हाँ, और जब भी तुम के मैप बनाओ ना तो नेक्स्ट स्टेट को मत डालना उसमें, हमेशा प्रेजेंट स्टेट और इनपुट अगर है तो इनपुट, और फिर जो ये उसके लिए के मैप बनाते हैं। लाइक इसकी के मैप अगर बनाए एक के लिए वापस से इसकी अगर के मैप बनाए तो कैसी होगी, लाइक यहाँ पे ऐसा, इस पे लाइक प्रेजेंट स्टेट Q8 और Q4 को यहाँ पे रखो, Q8 Q4, और यहाँ पे तुम्हारी रहेंगी Q1 Q2 Q1, और इसमें लाइक से लेट से T8 के लिए बना रहे, तो इसमें 1 कहाँ पे है। एक तो फिर पहले 9 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद तुम्हारी सारी डोंट केयर होंगी। ये डोंट केयर, और तुम्हारी 9 पे 1 है और 7 पे 1 है। 9 पे 1 है
और 7 पे 1 है, 7 यहाँ पे होगा ना, 9 8 7, हाँ 7 यहाँ पे 1 होगा, हाँ तो 9 पे और 7 पे 1 है, तो बस इस पे इसके लिए के मैप बनाओ तो ऐसा दिख जाएगा, लाइक इसमें कुछ वैसा खास नहीं। ये एक के मैप तुम्हारा ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ऐसे बनाते, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत करना, मैं तो पहले बहुत कंफ्यूज करता था, अब क्लियर हुआ है। तो ये देख लेना, स्टेट इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा बीसीडी काउंटर। अभी सेम चीज़ को जेके फ्लिप फ्लॉप से कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे कंबाइन कर दिए हमने, लाइक तुम्हारी लोडिंग भी हो रही है, क्योंकि लोडिंग एक अलग टास्क होता है, तुम्हें किस स्टेज पे लोड करना है, किस स्टेज पे काउंट करना है, ये ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी कर दिया। तो लोडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमेशा लोडिंग के लिए एक, जब भी कोई फाइनल आईसी बनती है उसमें लोडिंग की एक पिन ज़रूर रहेगी। तो एक इसमें लोडिंग डाल दिया, एक काउंट के लिए डाल दिया कि काउंट शुरू करो, और ये तुम्हारी 4 इनपुट। इसमें कुछ खास नहीं डालोगे तो यही सेम प्रीवियस वाली सर्किट आ जाएगी। और इसमें कुछ ऐसा जो समझ ना आ रहा हो किसी को कुछ भी, ये बस दिखे, अच्छा फील आ जाए कि काउंटर कैसे काम करता है। जो हम लोग जनरल काउंटर यूज़ करेंगे वो सॉर्ट ऑफ ऐसा ही होगा, कुछ जो बड़े वाले काउंटर होते हैं वो नहीं करेंगे या जॉनसन, हम लोग इसी से अपना काम चला लेंगे। लेकिन अभी पढ़ाना है रिंग और जॉनसन पर, इन्हीं से अपना काम हो जाएगा, इन्हीं सब के टाइप का। कोई अगले क्लास में आईसी बता देंगे तुम्हें कि कौन सी आईसी यूज़ करनी है और उसका पिन वगैरह कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पर फिलहाल तो इतना ही है। तो इसमें कुछ अगर डाउट हो रहा हो तो बता दो, 7-10 स्लाइड बचे नहीं। ये सब अभी तक जितने भी ऑपरेशन पड़े ना काउंटर में, सबका सब यहाँ पे आ रहा है। ओके, आई गेस डाउट नहीं है किसी को। ओके, तो अदर काउंटर्स में देखो तो एक तुम्हारी डिवाइड बाय एन, वही मॉड्यूलो काउंटर, कि तुम किसी एन नंबर तक जा रहे हैं, एन के बाद नहीं जा रहे हैं। तो दूसरा काउंटर एक होता है कि सिग्नल के लिमिट कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है कुछ। और ये जैसे कि ये तुम देखो, तुम्हारा शिफ्ट रजिस्टर क्या होता था, शिफ्ट रजिस्टर तो यही होता था ना, यहाँ से यहाँ तक एक इसको एक डब्बे में बंद कर दो तो शिफ्ट रजिस्टर, यहाँ से यहाँ तक एक डब्बे में बंद कर दो तो एक शिफ्ट रजिस्टर होता था। तो ये काउंटर्स रजिस्टर से ही बनते हैं, ऐसा इसमें कुछ वो बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, अच्छा, इसमें ना एक काउंटर में कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है कि लेट्स से कि हमने बीसीडी वाला काउंटर बनाया है, 0 से 9 तक ये जा रहा है, तो 9 के बाद अगर हमने इसको बनाया कि ये बस 0 से 9 तक काउंट करे, लेकिन अगर किसी 9 से आगे वाली कंडीशन जितनी भी 10 11 12 इसको हमने डोंट केयर लिया है, तो फिर अगर किसी ने इस पे हमें वो डाल दिया कि मतलब गलती से किसी यूज़र ने इस पे लेट्स से 11 डाल दिया है, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ये भी हमें मतलब जो अच्छे वाले काउंटर होते हैं उनमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता फिर अगर 11 लेट्स से डाल दिए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, वो काउंटर किस सर्किट में चला जाएगा वो पता नहीं चलेगा। लेट्स से कि अगर हमने 11 डाला है तो 11 डालने के बाद हम चाहेंगे क्या कि हमारी नेक्स्ट स्टेट 0 पे पहुँचे, तो काउंटर कुछ काउंटर होते हैं वो इसका भी ध्यान रखते हैं, और उसमें कुछ अलग से नहीं, लाइक ये इसी में तुम चाहो तो इसी स्टेट टेबल को एक्सटेंड करके उनके लिए उनके कंडीशन डाल सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसा कि कुछ भी उल्टा पुल्टा आया जो नहीं है इसमें, तो उसके लिए कुछ अलग भी कर सकते हो। जनरली तो वही करते हैं हम लोग कि इसी स्टेट टेबल को एक्सटेंड कर देते हैं और इसकी नेक्स्ट स्टेट को 0 कर देते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं, उसको पीपीटी में भी नहीं डाल रहे इस वजह से। अभी कुछ अदर काउंटर्स में एक कुछ नॉन बाइनरी काउंटर होते हैं, जैसे कि हमने बाइनरी अभी हम लोग क्या करते हैं कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे कर रहे थे किसी एन सीक्वेंस तक। कभी कभी हमें नॉन बाइनरी काउंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वही तो होते हैं रिंग और जॉनसन। यूज़ नहीं, अपने
पीएस में यूज़ शायद नहीं होगा इसका, मुझे नहीं लगता कि यूज़ होगा, उसके बिना भी हो जाएगा आराम से, बहुत कम यूज़ आना है उसका। पर इनका आगे यूज़ बहुत है। जॉनसन काउंटर तुम्हारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, फाइनाइट स्टेट मशीन में या फिर बाकी जगह पे जॉनसन काउंटर यूज़ होता है, इसलिए बुक में है और इसलिए पढ़ा भी रहे। तो लाइक अच्छा, ये काउंटर विथ अनयूज्ड स्टेट है, सॉरी। ये अभी जो कह रहे थे ना कि अगर तुमने कोई लेट्स एक सेकेंड, रिंग काउंटर से पहले ये देख लेते हैं, काउंटर विथ अनयूज्ड स्टेट। मुझे तो वही इसमें जैसे कह रहे थे कि 9 के बाद अगर हमें पता ही नहीं है कि अगली वैल्यू क्या होनी है, ये तो 3 बिट के लिए। लेट्स से कि हमने 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद सीधा 4 पे आ गया, 3 को हमने छोड़ दिया। अगर हमने यूज़र ने 3 डाला है तो हम क्या चाहेंगे, हमारी सर्किट इस पे जाए। तो ये बस इसके लिए सेल्फ करेक्टिंग काउंटर्स होते हैं। ये मतलब इनमें क्या होता है कि जो अनयूज स्टेट्स हैं उनको मतलब इनके लिए बस एक अलग से बना देते हैं कि ये पहुंच जाए वहाँ पे, ऐसा जो प्रीवियस पहले पढ़ चुके हैं वैसे ही है, इसमें कुछ अलग सी नहीं। रिंग काउंटर पे आते हैं। तो रिंग काउंटर क्या होता है ना कि रिंग काउंटर में क्या होता है कि ये एक सर्कुलर शिफ्ट रजिस्टर है। ये मतलब इसमें ना एक हम लोग काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब पहली वाली काउंटर क्या होती है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अभी यहाँ पे ना इस रिंग काउंटर में क्या करते हैं, हमारी पहली वैल्यू होती है 1, 0, 0, दूसरी होती है 0, 1, ऐसा, फिर तीसरी वैल्यू होती है 0, 0, 1, 0, फिर चौथी होती है 0, 0, 0, 1। तो ये मत पूछना ये ऐसा क्यों है, रिंग काउंटर की यही स्टेट ऐसा ही होता है रिंग काउंटर, बस मतलब ऐसा नहीं कि क्यों है और क्या है, ये रिंग काउंटर ऐसा ही होता है। अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, क्योंकि ये बाइनरी काउंटर नहीं है ना, तो लाइक ये यूज़ के अकॉर्डिंग होता है। लाइक इनका यूज़ बहुत जगह होता है, किसी भी सिग्नल को 2 फेज में बांटना हो या फिर किसी भी सिग्नल को 4 फेज में बांटना हो, उन सब के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो ये रिंग काउंटर में क्या होता है, जैसे कि ये देखो 0 इस स्टेट के बाद हमारा 0, 1, 0, 0 आ रहा है, तो क्या कुछ नहीं, बस एक शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कर लो जिसकी लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे लास्ट वाली को फीडबैक में डाल देना। तो ये क्या होगा ना, पहले लेट से ये 1, 0, 0 था, 1, 0, 0 है। शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, शिफ्ट करता है, तो अगली वैल्यू क्या होगी, और ये वाली जो ये वाली लेफ्ट मोस्ट वैल्यू थी वो इसको यहाँ से मिल रही, तो अगली वैल्यू क्या होगी, ये एक बिट शिफ्ट कराएगा तो पहले ये होगी 1, ये 0, ये 0, और फिर ये यहाँ पे जो वैल्यू आनी है वो यहाँ से आएगी, तो ये 0। तो ऐसे ही ये बस काउंट करते चलेगा। क्लॉक सिग्नल्स वही, मतलब एक हर अगर क्लॉक ऐसी है तो 1/4 ऑफ टाइम स्पेन के लिए सारे के सारे एक बार 1 होंगे, पहले ये फिर ये फिर ये। ये तो तुमने शिफ्ट रजिस्टर से इसको इम्प्लीमेंट करा लिया। दूसरा तरीका है कि सिंपली काउंटर से भी इसको इम्प्लीमेंट करा सकते। काउंटर में एक डिकोडर डाल दो। अभी अगर हमारी काउंटर अभी 0, 0 काउंट कर रही है, तो 0, 0, तो इस पे ये सबसे पहली वाली सेलेक्ट लाइन को डिकोडर में ये सबसे पहली वाली सेलेक्ट लाइन को 1 करेगा, तो इस केस में T0 1 हो जाएगा, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे। अगर तुम्हारी काउंट की वैल्यू 0, 1 है तो ये पहली वाली लाइन को सेलेक्ट करेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो ये T1 की वैल्यू 1, बाकी सारे के सारे 0। तो ऐसा ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि रिंग काउंटर में अगर हमें n स्टेप का रिंग काउंटर बनाना है, n बिट का, तो उसके लिए हमें n रजिस्टर्स चाहिए, ठीक है। तो इसी का एक थोड़ा अच्छा वर्जन है जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे करा था, तो 4 बिट नंबर के लिए हमें 4 रजिस्टर लग रहे थे। इसमें क्या होता है कि अगर हमने 4 रजिस्टर लिया ना तो हमारी 8 स्टेट काउंट होते हैं, उसका डबल हो जाता है सीधा सीधा। तो जॉनसन काउंटर में ये इसकी स्टेट डायग्राम है, ये देख लो कि तुम्हारी पहली इसमें ये क्या थी, ये तो पहले
सब सारी एक दूसरे से ये तो कनेक्टेड, ये शिफ्ट रजिस्टर में कनेक्टेड है। और ये जो ई आ रही है ना, ये ई के लिए हम लोग ये मतलब इससे पहले क्या कर रहे थे, ये जो T3 थी इसी को डाल दे रहे थे ना इसमें। इस केस में क्या करते हैं कि हम लोग ये ई को ना डाल के ई बार को डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि देखो इस सीक्वेंस ऐसी हो जाती है कि पहले 0 0 0 आए, फिर उसके बाद ये इनिशियली 0 0 0, अगली बार क्या होगा कि ये ई बार डाल रहे हैं, तो ई की वैल्यू तो अभी 0 है, तो ये ई बार पास करेगा, यहाँ पे ये ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सारे 0। अभी भी ई की वैल्यू 0 है, तो ये इसको 1 पास करेगा, ये 1, ये भी 1, और ये तो शिफ्ट इधर तो शिफ्ट होगा ना, ये तो बस सिंपली शिफ्ट हो रहा है। ये 1 पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये क्योंकि ये शिफ्ट रजिस्टर है ना, तो ये 1 1 1 शिफ्ट हो गया। तो इससे क्या होती है ना कि हमें 4 एक्स्ट्रा स्टेट्स मिल जाती हैं ये जॉनसन काउंटर में। तो इससे बस यही होता है कि ये 8 है और बाकी सब कुछ सेम है पहले रिंग काउंटर की तरह ही। तो दैट्स इट फॉर काउंटर। किसी और को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। इसमें हाँ, इसमें ना क्या करते हैं कि एक एंड गेट की लगाते हैं। ये फिगर में हमने दिखाया नहीं है, पर इसमें क्या होती है कि एक डिकोडर लगा करके एक ये एंड की ये लगा देते हैं कि ऐसे करके डिकोडर में डाल देते हैं इसको। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। किसी को डाउट हो कुछ तो पूछ लो, जितने भी चीज़ पढ़ा। रिंग और जॉनसन में उतना कुछ नहीं है, लाइक रिंग और जॉनसन हम यूज़ भी नहीं करेंगे, पर जॉनसन काउंटर आगे के लिए बोल ही चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी काउंटर में वही बाइनरी काउंटर या ये वाली जो बाइनरी काउंटर है, ऐसा ही कुछ आईसी यूज़ करेंगे। और रजिस्टर में 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ये वाली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो बस ये समझ लो कि ये क्या काम कर रहा है। जैसे अगर हमने एक शिफ्ट रजिस्टर डाला है, 0 0 डालेंगे, हमें कोई चेंज नहीं, जो पहले t = n पे हमारी जो सिग्नल रहेगी, t = n+1 पे भी वही सिग्नल रहेगी। 0 1 डाला है तो उस सिग्नल को वो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कर देगा, 1 0 डाला है तो उसको लेफ्ट शिफ्ट करा देगा, और 1 1 डाला है तो नई सिग्नल को वो लोड कराएगा। और फिर काउंटर्स में एक एसिंक्रोनस काउंटर यूज, एक रिपल काउंटर और एक सिंक्रोनस काउंटर, समझ लो एसिंक्रोनस काउंटर ये वाली, और एक ये बाइनरी काउंटर विद पैरेलल लोड। तो इतना ही था रजिस्टर एंड काउंटर से। हमारा ख़त्म हो गया जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था। अगले क्लास में बस इसको रजिस्टर और काउंटर को एक बार सिमुलेट करा के, और फिर कुछ 1 2 फ्लिप फ्लॉप भी सिमुलेट करा करके देख लेंगे प्रोटीएस पे। और फिर थोड़ा सा आइडिया तुम लोग को दे देंगे हम लोग उसका रैम का, कि रैम में कैसे स्टोर करते हैं और उसमें कैसे वैल्यू स्टोर होती है। उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा DigiSim का टोटल वर्कशॉप, और अगले वर्कशॉप में ही हम लोग PS भी लॉन्च कर देंगे। तो किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। कोई नहीं बचा लगता है। बस 5 लोग बचे हैं। Okay, किसी I guess we're done here. Recording stop कर देते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।